Good morning, my dear students. Welcome back to these videos related to communication skills in English. We are studying chapter number 1.2, types of communication. This is a part of unit number 1, that is communication theory and practice. The previous chapter was related to basics of communication. And in that one, I have recorded 4 videos. Though the videos are 5 and 6th video is from previous PPT is from formal communication. Now, when I show you this diagram, you will be able to understand how many types of communication are there and on what basis they are classified. First is based on communication channels. Second is based on style and purpose. We are studying based on style and purpose, and in the previous video I have already discussed formal communication with you like this. This was the presentation, formal communication, and now this one is regarding informal communication. The other two types are based on communication channels, that is non-verbal and verbal. So here we go with the definition first. What is informal communication? The informal communication is the casual and unofficial form of communication wherein the information is exchanged spontaneously between two or more persons without conforming the prescribed official rules, processes, system formalities and chain of command. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एक इस तरह का कम्युनिकेशन है जहां पर सूचना का आदान प्रदान किया जाता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, लेकिन वहां पर कोई ऑफिशियल रूल नहीं होता, वहां पर कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं होती इंफॉर्मेशन को लाने ले जाने के लिए, और वहां पर कोई सिस्टम नहीं होता या वहां पर कोई चेन उसकी नहीं होती, कोई ऐसी चेन नहीं है जिसके बेसिस पर उस इंफॉर्मेशन को यहां से वहां पहुंचाने के लिए किसी प्रोटोकॉल का सामना करना पड़ता हो, किसी प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़े. It is based on the personal or informal relations such as friends, peers, family, club members, etc. ये बेस्ड होता है, ये डिपेंड होता है व्यक्तियों के आपस के संबंधों में, उनकी किस प्रकार की फ्रेंडशिप है, उनकी किस प्रकार की इंटीमेसी है. ये उस बात पर निर्भर करता है, इसको ज्यादा उस बात से तय किया जाता है कि आपका वहां पर सोशल सर्किल कैसा है, किसी भी ऑफिस के अंदर आपका फ्रेंड सर्किल कैसा है, आपकी वहां की मेंबरशिप जो है वो किस प्रकार की है, कितने लोगों से आप वहां पर अनऑफिशियली कनेक्ट है, तब जाकर आपको इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन मिलती है. दैट इज द मेन रीजन. नाउ थर्ड foremost point is it is free from the organizational conventional rules and other formalities. It is absolutely free from organizational conventional rules. मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो संस्थागत नियम हैं, जो भी बनाए हुए रूल्स हैं, उन सब से ये फ्री होता है क्योंकि इसके ऊपर किसी का बाउंडेशन नहीं होता.
ये कहीं बंधा हुआ नहीं होता। ये क्यों बंधा हुआ नहीं होता वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा जब आप इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। In the business context, the informal communication is called as a grapevine, as it is difficult to define the beginning and end of the communication. Generally, informal communication को एक नाम दिया जाता है और वो नाम है grapevine, as it is difficult to define the beginning and end of communication. grapevine का मतलब ये है कि वहां पर उसकी जो लटें, जैसे आप किसी अंगूर की बेल को अगर आप देखते हैं तो आपको उसको ये नहीं पहचान पाएंगे कि वो शुरू कहां से है और वो खत्म कहां पर है। उसकी बिगिनिंग या उसका एंड आप नहीं पहचान सकेंगे। तो जैसे ग्रेप वाइन, एक अंगूर की अगर बेल को आप देखें तो आपको उसको शुरू होने का और उसके अंत का कहीं पता नहीं चलता है, इसीलिए इसका नाम हमने ग्रेप वाइन दिया गया है। ग्रेप वाइन जो वर्ड है इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। सो अकॉर्डिंग टू द सेकंड डेफिनेशन, द informal communication is characterized by an indefinite channel of communication, which means the information can flow from anywhere. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं आपको यही बताने वाला था। दो चीजें मैं वापस रिपीट कर देता हूं, अगर कहीं ब्लैंक भी आया होगा तो आप उन्हें वापस जोड़ने की कोशिश कीजिए। उसका मतलब है कि ग्रेप वाइन के ऊपर क्वेश्चन आता है, पूछा जा सकता है आपसे व्हाट इज ग्रेप वाइन, तो आप लिखेंगे ग्रेप वाइन इज ऑल्सो नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वेयर देयर इज नो डेफिनेट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन कैन फ्लो फ्रॉम एनीवेयर। इसमें कोई निश्चित चैनल नहीं होता। अब चैनल आप वर्ड समझ गए होंगे, चैनल कई बार हमने यूज किया है वर्ड। कोई निश्चित चैनल नहीं होता कम्युनिकेशन का, और इंफॉर्मेशन जो है वो एक स्थान से दूसरे से तीसरे तक जाती रहती है। ऑफन सच कम्युनिकेशन अराइजेज आउट ऑफ द सोशल रिलेशंस दैट एन इंडिविजुअल क्रिएट्स विद अदर पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स। ये इंफॉर्मेशन अक्सर ऐसे लोगों के बीच शेयर होती है जिनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग टॉपिक कॉमन होता है, जिसमें वो बात करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि क्या सबसे ज्यादा इसमें निकला। दो बातें इसमें निकली। पहली बात, एक तो कोई भी चैनल फिक्स नहीं है। दूसरी बात, जब भी कोई बात होगी तो वो आउट ऑफ द वे होगी, आउट ऑफ द ऑफिस प्रोटोकॉल होगी और कॉमन इंटरेस्ट की बात होगी। Next one is the gossip in the organization is the best example of informal communication, wherein the employees of different departments, irrespective of their hierarchical positions, can come together and communicate with each other. Gossiping यानी गप मारना, इधर की उधर करना, ये सबसे बड़ा उदाहरण है ग्रेप वाइन का। ये अफवाहें जो फैलती हैं, ये ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का। आपको कभी सोर्स पता नहीं होता, बस सामने वाला कहता है मैंने सुना है, मुझे किसी ने बताया। वो किसी ने कौन है हम कभी नहीं जान पाते। यही चीज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाती है। मैंने आपसे कहा था कि आगे की जो प्रेजेंटेशंस होंगी उनमें आपको क्लियर हो जाएगा कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि कभी भी हमें इस सूचना का पता नहीं चल पाता। कभी भी हम ये तय नहीं कर पाते कि ये सूचना कहां से आई है। आप जिससे ही पूछेंगे वो आपको नाम नहीं बताएगा, वो कहेगा मैंने सुना है, मैंने सुना है।
The grapevine satisfies the social needs of people and smoothens the formal relations by filling in the gaps and even bring together different people who do not fall under the common chain of command. ग्रेपवाइन जो है ये इस चीज को सेटिस्फाइड करता है जो लोगों की सोशल नीड्स होती हैं, जो लोगों के मन में होती है. नेक्स्ट, द ग्रेपवाइन सेटिस्फाइज द सोशल नीड्स ऑफ पीपल एंड स्मूथन्स द फॉर्मल रिलेशंस. इंपॉर्टेंट वर्ड है कि वो उनकी सोशल नीड्स को पूरा करता है जो कि ऑफिस में नहीं मिल पाती हैं, और फॉर्मल रिलेशनशिप को और अच्छा करता है क्योंकि कुछ गैप्स होते हैं जो कि इनफॉर्मली इससे फिल हो जाते हैं. कभी कभी संभव नहीं होता कि एक प्रॉपर चैनल के थ्रू एक एम्प्लॉय बॉस के पास पहुंच जाए, तो ऐसे में कुछ ऐसे मीडिएटर्स होते हैं, ऐसे में कुछ इस प्रकार के सोर्सेज होते हैं जो उनको हेल्प कर सकते हैं आगे उनकी बात पहुंचाने में. नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. So here it is written, the grapevine satisfies the social needs of people and smoothens the formal relations by filling in the gaps and even bring together different people who do not fall under the common chain of command. ग्रेपवाइन जो है लोगों की सोशल नीड्स को पूरा करता है. कई बार एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो डायरेक्ट अपने बॉस के चैम्बर में जाकर उससे बात कर सके. ऐसे में कुछ इनफॉर्मल चैनल्स उसको मिलते हैं, चाहे वो पुराने कोई क्लर्क हो, चाहे वो कोई पुराना पियोन हो, उसका कोई मीडिएटर फ्रेंड हो. वो सब लोग भूमिका निभाते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की और वो उसकी बात को आगे तक पहुंचा देते हैं. तो ऐसे में एक एम्प्लॉय की सोशल नीड्स यानी बातचीत की नीड्स पूरी हो जाती हैं, गैप्स फिलअप हो जाता है, और अगर कोई कॉमन चेन ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करता तो उसकी बात भी मैनेजमेंट तक या ऊपर तक पहुंच जाती है. नाउ, टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. अब हम देखेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दैट शो हाउ द कम्युनिकेशन इज फैसिलिटेटेड. किस प्रकार ये कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है उसे देखेंगे हम 4 प्रकार से. पहला है सिंगल स्ट्रैंड चेन, दूसरा है गॉसिप चेन, तीसरा है प्रोबेबिलिटी चेन और फोर्थ है क्लस्टर चेन. ये 4 प्रकार हैं और इन 4 प्रकारों को हम अलग अलग तरीके से यहां पर डिस्क्राइब कर रहे हैं. फर्स्ट वन इज सिंगल स्ट्रैंड चेन नेटवर्क. Under this communication pattern, one person will give information to another person who will communicate it to the next person, and similarly the next third person will also communicate to the next and so on. एक ने बात की, दूसरे तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई, दूसरे ने बात की, तीसरे तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई, तीसरे ने चौथे तक. लेकिन ये चलता कैसे है? ये एक ही क्रम में चलता है, ये एक ही रो होती है, पूरी की पूरी लाइन होती है, उसी लाइन में कम्युनिकेशन फ्लो करता है. दिस टाइप ऑफ चैन इज लेस रिलायबल एंड एक्यूरेट टू पास ऑन द मैसेज. हियर द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज लीनियर. ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई. बातचीत इस प्रकार यहां पहुंचती है. दूसरा आता है गॉसिप चैन नेटवर्क, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यही होता है. आपने सेंटर में ए है, मान लीजिए आप हैं, एक बात आपने बी को बताई, वही बात सी को बताई, वही डी को बताई, वही ई को बताई, वही एफ को बताई, वही जी को और वही एच को. मल्टीपल डायरेक्शंस में आपने बातें पहुंचाई, लेकिन वो एक दूसरे को नहीं जानते
उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं बना। बात सिर्फ आपसे पहुंची और सब तक पहुंची। इन द गॉसिप चैन नेटवर्क देयर इज एन इंडिविजुअल हु टेल्स द मैसेज टू ऑल अदर मेंबर्स इन द नेटवर्क डायरेक्टली। केवल एक होता है पर्सन और वो दूसरों तक अपनी बात डायरेक्टली पहुंचा देता है। He is generally the central person who seeks out and transmit information to all that he has obtained. वो खुद अपनी बात आगे तक पहुंचाता है। Here, every person in the network communicates with each other informally. और अगर इनके बीच में भी कोई कनेक्शन होगा तो वो इनफॉर्मल रहेगा। This network is often used when the subject matter is unrelated to the nature of the job. Just एक public gossiping की तरह होता है। कहां कौन किससे रिश्वत ले रहा है, कहां किसने फाइल रोकी हुई है, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, उसको उसने ये कर दिया, उसने उसके साथ ये धोखा दे दिया। इस तरह की जो भी फालतू की बातें होती हैं वो सारी गॉसिप चैन नेटवर्क के अंदर अवेलेबल होती है। नेक्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी चैन नेटवर्क। हियर द इंफॉर्मेशन पासेज रैंडमली फ्रॉम पर्सन्स टू पर्सन। सोर्स ए ऑफ मैसेज सेलेक्ट्स एनी पर्सन बी रैंडमली, किसी को भी वो पिक कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो उसकी लाइन में ही हो। दैट सेकेंड पर्सन विल अगेन सेलेक्ट अनदर पर्सन सी, सी ई को पकड़ेगा, ई एच को पकड़ेगा, एच फिर ए को पकड़ेगा। आपस में ये बातें यहां पर इधर से उधर, उधर से उधर, जैसा कि डायग्राम आपको दिख रहा है, घूमती रहती है। तो इसलिए इस प्रकार के ग्रेप वाइन चैनल को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी चैन नेटवर्क। नेक्स्ट वन इज क्लस्टर चैन नेटवर्क। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कुछ क्लस्टर बिजनेस काम करते हैं। आपने नाम सुना होगा एमवे का, आपने नाम सुना होगा मोदी केयर का। ऐसे कई बिजनेस मॉडल्स हैं जहां पर क्लस्टर चैन नेटवर्क की हेल्प ली जाती है। ए ने बी, सी और डी नाम के 3 एजेंट बनाए, बी ने अपने नीचे 3 एजेंट बनाए, सी एक ही एजेंट बना पाया और डी ने ई, एफ और जी नाम के 3 एजेंट बनाए। अब वहां एजेंट होते हैं और यहां पर बातें होती हैं। ए ने एक बात बी को बोली, बी ने वही बात एच, आई और जे को बोल दी। ए ने एक बात सी को बोली और सी ने वो वाली बात के को बोल दी। डी ने ए से एक बात सुनी और फिर वो वाली बात ई, एफ और जी को बता दी। इसे हम कहेंगे क्लस्टर चैन नेटवर्क। अब दोबारा से इन स्लाइड्स के डायग्राम्स को देखिए। सिंगल स्ट्रैंड चैन नेटवर्क में एक ही डायरेक्शन में बात जाती है, लीनियर डायरेक्शन में। गॉसिप चैन नेटवर्क में एक पर्सन होता है मिडिल में और वो चारों तरफ बात को फैलाता है। प्रोबेबिलिटी चैन नेटवर्क में एक व्यक्ति बताता है दूसरे को, दूसरा पता नहीं किसी चौथे को, चौथा पता नहीं किसी 8वें को, वहां पर ये होता है। और क्लस्टर चैन में एक व्यक्ति के नीचे जो भी लोग होते हैं वो अपने अपने नीचे उस बात को शेयर करते हैं। नाउ इन दिस स्लाइड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। एक इनफॉर्मल या ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन की क्या खूबी होती है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो आप देखिए। नंबर 1 इज फॉर्मेशन थ्रू सोशल रिलेशंस। ये जब बनता है तो इसमें सोशल रिलेशनशिप को ध्यान रखकर बनाया जाता है। 2 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वर्क रिलेटेड एंड इंडिविजुअल। 2 तरह की इंफॉर्मेशन यहां पर पास ऑन होती हैं, 2 तरह की बातें यहां पर पहुंचाई जाती हैं। इट मे बी वर्क रिलेटेड और इट मे बी इंडिविजुअल्स।
Number 3, it has an uncertain path. इसका जो पाथ होता है, इसका जो रास्ता होता है वो अनसर्टेन होता है। आप ये तय नहीं कर सकते कि ये सूचना कहां से कहां पहुंच जाएगी, और आप ये तय नहीं कर सकते कि ये सूचना मुझे कहां से प्राप्त होगी। इसका कोई पाथ नहीं होता। पॉसिबिलिटी ऑफ र्यूमर एंड डिस्टॉर्शन, बिल्कुल सबसे बड़ा जो इसका नुकसान है, सबसे बड़ा जो यहाँ पर प्रॉब्लम है, वो है र्यूमर को लेकर, वो है अफवाहों को लेकर या डिस्टॉर्शन को लेकर। डिस्टॉर्शन जो है वो किसी भी कम्युनिकेशन को ब्रेक कर सकता है, उसका विरूपण कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्विक रिले, बस इसका जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके कारण ये पॉपुलर है, बहुत तेजी से बात फैलती है, जंगल की आग की तरह बात फैलती है, तुरंत बातें आगे से आगे पहुंच जाती हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस और कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिन्हें हम यहां देखेंगे। फर्स्ट इज फास्ट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मैंने जैसा अभी आपको बताया था, ये तेज है, इसमें कोई बाधा नहीं है, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है, बात तुरंत पहुंचती है। फ्री इन्वायरमेंट, आपको कोई फॉर्मेलिटीज में नहीं बाउंड होना पड़ता, आपको कोई ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज नहीं करना पड़ता, आप अपनी ही लैंग्वेज में बात को पहुंचा सकते हैं। बेटर ह्यूमन रिलेशंस, इनफॉर्मल या ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए ह्यूमन रिलेशनशिप का होना बहुत अच्छा है, अच्छा होना बहुत अच्छा है। यानी वो जितनी स्ट्रांग रहेंगी उतनी ही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी, उतनी ही रिफाइन होकर इंफॉर्मेशन आप तक आएगी। इजी सॉल्यूशन ऑफ द डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, जुगाड़। इस कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आप कहीं काम में अटक गए हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा और आपने किससे डिस्कस कर लिया ऐसे ही, तो आपको वो नॉर्मली बैठे बिठाए ही कोई ना कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स का बैठे बिठाए सॉल्यूशन यहाँ कभी कभी मिल जाता है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेटिस्फाइंग द सोशल नीड्स ऑफ द वर्कर्स। काम में प्रोफेशनलिज्म जब ज्यादा आ जाता है तो काम स्ट्रेस देना शुरू कर देता है। उस स्ट्रेस को निकालने के लिए, उस दबाव को दूर करने के लिए एम्प्लॉयज जो है सोशल नीड्स उनकी पैदा हो जाती हैं। वो चाहते हैं कि इस घुटन भरे वातावरण से कहीं दूर जाकर इनफॉर्मल वे में अपनी बात को पहुंचाएं। तो अक्सर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कैंटीन जो है वो एक ऐसा ही प्लेस होती है जहां पर लोग मिक्सअप होते हैं, जहां पर लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। इनफॉर्मल और ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन हैज द फॉलोइंग लिमिटेशंस। इसकी जो बाधाएं हैं या इसकी जो सीमाएं हैं, हम उससे ज्यादा कहेंगे सीमा, लिमिटेशंस, यानी कि एक सीमा क्या है इसकी। पहली है अनसिस्टमैटिक कम्युनिकेशन। जी हां, ये बिल्कुल अनसिस्टमैटिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनरिलायबल इंफॉर्मेशन, यस डेफिनेटली जो भी इंफॉर्मेशन यहां मिलती है आप उसको जब तक ऑफिशियली कंफर्म ना कर लें तब तक आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। द इंफॉर्मेशन दैट यू रिसीव थ्रू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज रेयरली टू बी ट्रस्टेड। बहुत मुश्किल से आप उस पर ट्रस्ट कर पाते हैं। भले ही वो सच्ची हो, लेकिन आपको लगेगा कि अभी जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आएगा तब तक मैं इसे सच नहीं मान सकता। ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशंस होती हैं। तो एक बार दोबारा आप इनको देख लें, शुरुआत से स्लाइड्स, बीच में मुझे लगता है कुछ अगर गैप भी आपको लगा हो तो मैं आपको कवर करवाता हूं वापस। हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में। एक होता है कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर बेस्ड और एक होता है स्टाइल और पर्पस के ऊपर बेस्ड। हमने शुरुआत की है स्टाइल एंड पर्पस को लेकर और यहां पर हम बात कर रहे हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल
कम्युनिकेशन की। फॉर्मल कम्युनिकेशन को मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ाया था, जिसका टाइटल है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पार्ट फर्स्ट। इसमें हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में, और जो अगली स्लाइड्स होंगी वो होंगी नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन चैनल्स के लिए। देन इसमें फिर हमने डेफिनेशन पढ़ी। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज द कैजुअल एंड अनऑफिशियल। ये दो वर्ड याद रखिएगा, ये कैजुअल होता है और अनऑफिशियल होता है। इट इज बेस्ड ऑन द पर्सनल और इनफॉर्मल रिलेशंस सच एज फ्रेंड्स, पीयर्स, फैमिली, क्लब मेंबर्स एटसेट्रा। इन सब के ऊपर ये डिपेंड करता है, इन सब से ये जुड़ा हुआ होता है। इट इज फ्री फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल कन्वेंशनल रूल्स एंड अदर फॉर्मेलिटीज। ये काफी सारी अदर फॉर्मेलिटीज से भी अलग होता है। इन द बिजनेस कॉन्टेक्स्ट द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज कॉल्ड ग्रेप वाइन। ये बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूं स्लाइड, इस ग्रेप वाइन वर्ड को याद रखिएगा और इसे समझने की कोशिश कीजिए कि ये ग्रेप वाइन क्यों कहलाता है। क्योंकि जैसे कि एक अंगूर की बेल का कोई अता पता नहीं होता वो कहां शुरू हो रही है और वो कहां खत्म हो रही है, वैसा ही ये कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट वन इज गॉसिप। गॉसिप जो है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। गॉसिपिंग हर डिपार्टमेंट में, हर घर में, हर जगह आपको देखने को मिलती है और आप उससे समझ पाएंगे कि अफवाह फैलाना, रूमर्स करना, ये गॉसिपिंग करना, ये सब क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट, इसके 4 प्रकार को याद रखिएगा। इसके जो 4 टाइप्स हैं उनको याद रखिएगा। पहला सिंगल स्ट्रैंड, दूसरा गॉसिप चैन, तीसरा प्रोबेबिलिटी चैन और चौथा क्लस्टर चैन। आपको ये जो टर्म्स हैं इन चारों टर्म्स को याद रखना होगा, क्योंकि नोट्स आपके एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो आपका आंसर वहां पर बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, सिंगल स्ट्रैंड चैन नेटवर्क। सिंगल स्ट्रैंड चैन नेटवर्क में आप देखिए एक ही लाइन में ये चलता है, इट इज लीनियर। ए ने बी को बात बताई, बी ने सी को बताई, सी ने डी को बताई और डी ने ई को बताई। गॉसिप चैन नेटवर्क, बीच में एक पर्सन होता है जो सोर्स कहलाता है। वो सोर्स पर्सन जो है अलग अलग लोगों को एक ही बात बता रहा है। बी को बताया, सी को बताया, डी को, ई, एफ, जी और एच, इन सबको ये जो बात बताई गई, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बातें पहुंचती हैं इस गॉसिप चैन नेटवर्क में। प्रोबेबिलिटी चैन नेटवर्क, प्रोबेबिलिटी संभावना रहती है, कहीं ना कहीं बात एक जगह से दूसरी जगह और दूसरे से चौथी जगह, चौथे से 8वीं जगह, 8वें से 10वीं जगह डायरेक्शन चेंज होती रहती है, आगे पीछे हर जगह ये बात पहुंच जाती है। तो ये आपका जो चैनल है, ये जो चैन है, इसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी चैन नेटवर्क। फिर से हम बात करते हैं लास्ट दोबारा एक बार क्लस्टर चैन नेटवर्क की, जहां पर मैंने आपको बताया कुछ बिजनेस मॉडल्स भी ऐसे ही चलते हैं, जहां ए ने बी को बनाया मेंबर, बी ने एच आई और जे को बनाया, सी को बनाया मेंबर ए ने तो उसने के को बना लिया, ए ने डी को बना लिया तो उसने फिर 3 मेंबर और बना लिए। इसी प्रकार उनमें कम्युनिकेशन भी होता रहेगा। ए की बताई हुई बात बी तक पहुंची, बी से वो बात 3 जनों में बट गई, ए ने सी को पहुंचाई, सी से के को पहुंच गई, ए ने डी को बताई और डी से ई, एफ और जी में जाकर वो बट गई। और लास्ट स्लाइड वापस आप पढ़ लीजिएगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। पहला, सोशल रिलेशनशिप के थ्रू ये बनता है। दूसरा, 2 तरह की इंफॉर्मेशन यहां पर शेयर होती हैं, वर्क रिलेटेड एंड इंडिविजुअल। अनसर्टेन पाथ होता है। अनसर्टेन पाथ का मतलब है यहां पर निश्चित नहीं होता कोई भी डायरेक्शन उसका बात को पहुंचाने का। जैसे हमने वहां पढ़ा था डाउनवर्ड, अपवर्ड, डायगोनल, वर्टिकल, इस तरह के हमने टर्म्स वहां पर यूज किए थे। लेकिन यहां पर बात हो रही है कि इसका कोई पाथ सर्टेन नहीं होता। पॉसिबिलिटी ऑफ र्यूमर एंड डिस्टॉर्शन, बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है, बात अफवाह में बदल सकती है। 5th वन इज क्विक रिले, बात तेजी से आगे बढ़ती है।
अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ फायदे हैं। वही जैसा कि मैंने पहले बताया, फास्ट है, फ्री इन्वायरमेंट है, आप बाउंड नहीं है कहीं भी, ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होती है, इजी सॉल्यूशंस मिल जाते हैं कभी कभी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स के लिए। प्रॉब्लम अगर कोई बड़ी है तो उसका कोई शॉर्टकट भी हमें कभी कभी मिल जाता है। सोशल नीड्स को पूरा करता है। और लास्ट हमने बात की इसकी लिमिटेशंस को लेकर। पहली लिमिटेशन है कि ये अनसिस्टमैटिक है और दूसरी लिमिटेशन है कि ये अनरिलायबल है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो होपफुली बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा ये, और आप कोशिश करें आप फॉर्मल कम्युनिकेशन को ज्यादा अपनाएं बजाय इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तब तक के लिए स्टे सेफ एट होम, टेक केयर, गुड बाय।